हाँ सर, अभी कैसी है आवाज? एकदम बढ़िया। Good afternoon, everyone. Friends, on behalf of Bhopal branch of CIRC of ICI, I see Pradeep Upreja, Secretary Bhopal branch. Welcome all of you on this two-day virtual seminar on Excel. Friends, we all are aware that Excel is one of the audit tools which can be used by all of us professionals in various means, not only in audit but also on various financial implications, whether it's financial reporting or financial judgments. Today we are fortunate to have Shri Anand Paradkar and Shri Anil Upmanyu sir, who would be taking today's virtual seminar on the Excel decisions, functions, and reportings. In continuation to this, we would be having tomorrow also at 4 p.m. onwards Excel usage, wherein CS Saurabh Srivastava sir would be briefing us about Excel as an audit tool. Now, I would request C.A. Zubairullah Khan, Chairman Bhopal branch, to provide his welcome address. Thank you, Pradeep ji. Respected Anand Paradkar sir, C.A. Anup Maniju, other respected dignitaries, and senior chartered accountant, and my dear colleagues, a very good afternoon to all of you. On the behalf of ICI Bhopal branch, I, Chairman Bhopal branch, taken an opportunity to welcome all the dignitaries and the participants who are present in today's virtual webinar on Excel. First, I would like to welcome our speaker, Dr. Anand Paradkar sir and Anup Upmanyu sir. We welcome sir and thank you very much for your accept our invitation for this virtual webinar. Thank you very much, sir. I hope our members and their families are safe and enjoy the healthy life. As we all know, we are organizing so many programs since April to 2020, and following this stream, we are going to organize 2 days virtual webinar on Excel. And today we are organized on the topic decision functions and reporting in Excel and brief about financial functions. Unfortunately, we have with us a very learned eminent speaker, C. Anand sir and Anup Mani sir. We hope that we will guide us in a best manner. And this is all about from our side. And all are eager to listen our eminent speakers today. So I once again welcome to all of you and our proceeding to Pradeep. Thank you. Thank you, Zubair sir. Without taking much of the time, I would request Dr. Anand Paradkar sir and Shri Anil Upmanyu ji to take over the proceeding and brief our members about the usage of Excel and decision making. Anand sir, please. ओके सर, थैंक यू सर। तो मैं यहाँ से अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और एक्सेल को भी ऑन करूंगा। क्या आपको मेरी एक्सेल शीट दिखाई दे रही है सर यहाँ पर सभी लोगों को? जी सर। हेलो, हाँ जी सर, दिखाई दे रही है। ठीक। मैं यहाँ से सर कुछ पहले एक्सेल के बारे में बता दूं, कुछ शुरू की चीजें बता दूं, आज का थोड़ा सा एजेंडा बता दूं। मैं प्रेमा कंप्यूटर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूं यहाँ पर एक्सेल के टॉपिक को लेने के लिए। एक्सेल रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग फंक्शंस और रिपोर्टिंग्स का जो हमारा सेमिनार है, इसके लिए हम लोगों का सेंटर इंद्रपुरी भोपाल में है। माई सेल्फ डॉक्टर आनंद पराड़कर और मेरे सर अनिल उपमन्यु जी, हम लोग दोनों मिलकर के क्लास लेने वाले हैं, ये ऑनलाइन क्लास। आज का जो एजेंडा रहेगा वो डिसीजन फंक्शंस इन एक्सेल। बहुत सारे डिसीजन फंक्शंस हैं सर इसके अंदर, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शंस फाइनेंशियल फंक्शंस के ऊपर भी हम लोग देंगे। इसमें से जो शुरू के कुछ फंक्शंस हैं उनके बारे में अभी मैं बात करूंगा। सबसे पहले टुडेज सिलेबस में बेसिक्स ऑफ एक्सेल,
फिर फंक्शंस के बेसिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर सर कुछ वी लुकअप, एच लुकअप, और फिर जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स बनाए जाते हैं डॉलर लगा करके उनके बारे में, और फिर पिवोट टेबल। ऐसा आज का एजेंडा है, और इसके बाद अगर समय बचा तो मैं कुछ और बेसिक फंक्शंस भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सर यहाँ पर मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। शायद मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी दिख रही होगी, लेकिन मैं बोलता जाऊंगा तो आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ से जूम भी कर देता हूँ। सर मैं यहाँ पर बताता भी जाऊंगा और करता भी जाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सेल की जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं, एक्सेल में जब भी कोई काम करते हैं, तो फार्मूला और फंक्शन, ये दो चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब ये दो ही ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम एक्सेल के डेटा को यूज में ला सकते हैं। एक्सेल की शीट में जो भी डेटा लिखा होता है हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक फंक्शंस से मैं आगे शुरू करूंगा, और मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा कि फार्मूलेज क्या होते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बीच बीच में कुछ अगर जरूरत पड़े तो एनोटेट करके भी आप लोगों को दिखाता रहूंगा कि ये चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूला क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर मैं आपको कुछ रेंज के बारे में भी बताऊंगा कि रेंज रेफरेंस, नेम्ड रेफरेंस और सेल रेफरेंस, ये तीनों चीजें कौन कौन सी होती हैं, इनको किस तरीके से एक्सेल की शीट में हम लोग यूज करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि फार्मूला क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, और फार्मूले के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो फार्मूले के एलिमेंट्स सर यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एनोटेट करके भी दिखाऊंगा आपको। तो फार्मूले के एलिमेंट्स में प्लस, माइनस, डिवीजन, ग्रेटर देन के सिंबल्स, इक्वल टू, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो जो प्लस माइनस होते हैं सर हम लोग उनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं, और जो ग्रेटर देन लेस देन होते हैं उनको बहुत ज्यादा अगर टेक्निकलिटीज में नहीं भी जाना है तो उनको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये अपन लोगों ने मैथ्स में जो पढ़े हुए हैं, ग्रेटर देन सिंबल्स, लेस देन सिंबल्स, वो हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर एनोटेशन को क्लियर कर देता हूँ, और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपनी एक्सेल शीट के ऊपर, और थोड़ी सी कुछ चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक्सेल शीट को और जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखाई दे। तो सर ये A1 सेल है, ये B1 A2 है, ये A3 है, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 एंड 5। मात्र मैंने केवल 5 वैल्यूज ओनली लिखी हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको फंक्शन बताता हूँ कि किस तरीके से यूज होता है। तो मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू सिंबल। तो एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन इज इक्वल टू सिंबल या प्लस से शुरू होता है। आप प्लस से भी कोई भी फंक्शन या फार्मूला शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू सिंबल, और फिर मैंने लिखा सम, और सम लिखने के बाद मैंने यहाँ पर टैब का बटन दबाना है, तो ये फार्मूला एक्टिवेट हो जाता है। और इसके बाद मैंने यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट किया। बहुत ही सिंपल है, माउस से इस रेंज को अपन ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस को मैंने क्लोज कर दिया, और इसके बाद एंटर बटन प्रेस किया तो आंसर आ गया 15। तो ये तो सम था। तो ये मैंने बहुत छोटा सा एक फार्मूला लगा करके आपको सम निकाल करके दिखाया। दूसरा तरीका सर आप लोगों को सबको ही पता होगा कि ऑल्ट इज इक्वल टू से भी ये चीज आ जाती है। एक मिनट में थोड़ा सा एक्सेल में कभी कभी ये परेशानी होती है, तो ऑल्ट इज इक्वल टू का बटन दबाऊंगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की है, मतलब ऑल्ट इज इक्वल टू से भी आप यहाँ पर सम निकाल सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात सजेस्ट करना चाहूंगा सर, वैसे कुछ छोटी सी बात ही है कि आप कॉपी पेन जरूर अपने पास रख लें, और अगर कोई ऐसी चीज लगती है जो नोट करना है तो उसको जरूर लिख लीजिएगा अपने पास। तो ऑल्ट इज इक्वल टू करके हमने जो है यहाँ पर आंसर निकाल लिया है। तीसरा एक और तरीका सम निकालने का मैं बताता हूँ सर। जैसे अपन ने इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो देखिए राइट साइड में मैं आपको एनोटेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये इस तरीके से मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है वो, एक सेकंड में इसको ऊपर ले सकता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपको सम दिखाई देगा। तो जैसे ही आप रेंज सिलेक्ट कर लेंगे तो सम दिखाई देता है। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि हम इस तरीके से भी यहाँ पर सम ले सकते हैं। ये तीसरा तरीका है। यहाँ पर आएगा नहीं सम सेल में, लेकिन सम दिख जाएगा। अगर कुछ एक थोड़ी सी देर के लिए अपने को कहीं सम देखना है तो अपन ये काम कर सकते हैं। चौथा सर ऑपरेशन सम के लिए और क्या कर सकते हैं, तो मैं चौथे तरीके से आपको सम बताता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पर एक ऊपर ऑटो सम का ऑप्शन होता है, सिर्फ उसको दबा देंगे तो भी सम हो जाएगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सम फंक्शन से भी हम लोग सम ले सकते हैं। हम लोग
ऑल्ट इज इक्वल टू से भी सम ले सकते हैं। ऑल्ट और इज इक्वल टू, एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑल्ट इज इक्वल टू, बहुत तेजी से सम आता है यहाँ पर। ऑल्ट इज इक्वल टू से भी हम लोग सम ले सकते हैं। हम लोग ऑटो सम फंक्शन से भी सम ले सकते हैं। और हमारी एक्सेल शीट पे रेंज को सिलेक्ट करने के बाद, कई बार सर यहाँ पर थोड़ा सा अपन लोगों को लगता है अरे मेरा सम क्यों नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब तक आप रेंज सिलेक्ट नहीं करेंगे, माउस से आपको इस तरीके से या एरो की से आपको इस तरीके से रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगी। तो जब आप रेंज सिलेक्ट करेंगे तभी वो यहाँ पर राइट में आपको काउंट भी दिखाएगा, एवरेज भी दिखाएगा और सम भी दिखाएगा। ये तीन चीजें वो आपको दिखाता है। तो सर ये मैंने आप लोगों के लिए फंक्शंस बताए। तो सबसे पहला फंक्शन मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था सम। अब मैं आपको फार्मूला लगा करके दिखा रहा हूँ। देखिए फार्मूला कैसे लगता है। मान लीजिए अपने को सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, और यहाँ पर मैंने B1 सेल में 100 लिख दिया, फिर मैंने 3 लिख दिया, और फिर मैंने 2 लिख दिया। ये टाइम और रेट है। अब मेरे को निकालना है, और मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ऐसा ही नाम का कोई फार्मूला इसके अंदर है नहीं सर जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर मैं सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाइड बाई, फिर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाइड बाई, फिर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, और फिर मैं डिवीजन का ऑप्शन लेके 100 लिख दूंगा। ये आंसर आ जाएगा 6। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये हमने यहाँ पर एक्सेल का फार्मूला यूज किया सर, हमने एक्सेल का फंक्शन यूज नहीं किया। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनको हम लोग अलग से अपने इसमें रख लें, दिमाग में रख लें कि हाँ ये दो अलग बातें हैं, एक एक्सेल का फार्मूला है और एक एक्सेल के फंक्शंस है। अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर मैं ये सम नहीं है, और ये भी, अब ये वाली लाइन अभी मैं कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दी। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको जो अपनी शीट दिखाई थी उसके अंदर मैं बताया था कि इसके अंदर एक्सेल में जब भी हम किसी फार्मूले में या किसी फंक्शन के ऊपर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोग रेंज देते हैं। तो रेंज 3 टाइप की होती है सर, एक बार अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, सेल रेफरेंसेस, रेंज रेफरेंसेस और नेम्ड रेफरेंसेस। तो सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, फिर रेंज रेफरेंसेस क्या होते हैं मैं वो बताऊंगा, और फिर नेम्ड रेफरेंसेस क्या होते हैं मैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो जब मैंने इज इक्वल टू का सिंबल लिख के सम लिखा, अब सम की जगह मैं एक और फंक्शन ले लेता हूं, दैट इज एवरेज। तो मैं एक एक फंक्शन आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे एवरेज फंक्शन, एवरेज निकालना है सर हमको। तो हमने एवरेज फंक्शन लिया, और यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मैंने पैरेंथेसिस क्लोज की। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा सर कि ये जो चीजें आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखी हैं, ये ही रेंज रेफरेंस कहलाता है। यही रेंज रेफरेंस है, ये रेंज रेफरेंस है। रेंज रेफरेंसेस यही कहलाते हैं। इसी को सर हम लोग रेंज रेफरेंस कहते हैं, और कुछ नहीं है, यही रेंज रेफरेंस है। तो ये मैंने नाम दे दिया इसको रेंज रेफरेंस। और अब मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एवरेज निकाल करके दिखाता हूँ। ये देखिए एवरेज आ गया, एक्सेल पे आके ये एवरेज आ गया। और अगर मेरे को फास्ट एवरेज निकालना है तो ऑल्ट HUA, इससे भी आ जाएगा सर एवरेज। अब ये थोड़ी सी कीज का कॉम्बिनेशन है, आप चाहें तो लिख लीजिए ऑल्ट HUA, है ना, ऑल्ट HUA, ठीक है। अगर मैं चैट का यूज यहाँ शायद कर सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे चैट का यूज करना, और मैं आप लोगों को लिख के भेज देता हूं, ऑल्टर ऑल्ट HU और A। ये सर मैंने सबके लिए भेज दिया है, ये सबको मिल गया है, ऑल्ट HUA। हम इसका यूज कर सकते हैं, और जो है वो हम लोग यहाँ पर फास्ट, क्योंकि ये इसको क्या है थोड़ा सा करने के लिए फास्ट एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ। सर किसी ने भेजा है मुझे, कुछ 1 मिनट में देख लेता हूँ। फॉर एवरेज, यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, मैं यस लिख के भेज रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये एवरेज के लिए है सर, बिल्कुल सही है। तो ये एवरेज के लिए हमारा फंक्शन था ऑल्ट HUA। चैट पे मैंने लिखा था, बीच बीच में मैं चैट पे ऐसी कुछ अगर कुछ शॉर्टकट कीज लगेंगी तो मैं लिख दिया करूंगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ। अगर मुझे एवरेज फिर से निकालना है स्पीड से, तो मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, ऑल्ट HUA, ये देखिए आ गया एवरेज। तो ये हम लोगों ने सर एवरेज निकालना सीख लिया है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने रेंज रेफरेंस भी बता दिया। रेंज रेफरेंस मतलब जो सेल
के हम लोग कोलन लगा करके, कोलन के लेफ्ट में एक सेल का नंबर और कोलन के राइट में एक सेल का नंबर जो ड्रैग करके आता है, एक बार मैं फिर से दिखाता हूं, जैसे काउंट फंक्शन। अब मैं तीसरा फंक्शन बताता हूं, काउंट, उसमें और काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ये तो मैंने इसको टोटल सिलेक्ट किया और पैरेंथेसिस क्लोज की और काउंट का फंक्शन चला दिया, तो यहां पर आ गया 5। तो ये जो बीच में हमने यहाँ पर, मैं F2 करके दिखाता हूँ, एडिट की होती है ये। तो एक बार मैं फिर से यहाँ दिखाना चाहूंगा कि ये जो मैंने लिखा था यही रेंज रेफरेंस है, ये रेंज रेफरेंस है। ठीक है सर, अब मैं चलता हूं रेंज रेफरेंस के बाद मैं अब लेता हूं नेम्ड रेफरेंस। देखिए कई बार क्या होता है, हमको कुछ डेटाबेस टाइप की चीज की जरूरत पड़ती है। मतलब मुझे बहुत सारे सेल की वैल्यूज को एक साथ कहीं क्लब करके लिखना है। जैसे सपोज मुझे इन 5 वैल्यूज को कहीं लिखना है और मतलब एक ग्रुप बना लेना है। बहुत छोटी सी बात है, डेटाबेस ऐसे शब्द थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वर्ड्स बड़े हो जाते हैं। तो मैंने इनको जो ऐसे सेल बना ली, और सेल बनाने के बाद सबसे लेफ्ट में जहां A1 लिखा हुआ है ना सर, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक बार फिर से आपको एनोटेट करके दिखाना है, क्योंकि क्या है ये थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकलिटीज में यहाँ पर दिखाना पड़ जाता है। तो मैं दिखाता हूँ कि इस जगह पर सर, ये इधर देखिए, इस जगह पर मेरे को कुछ लिखने की परमिशन एक्सेल देता है जब मैं इधर से इस पूरी शीट को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रेमा। हम लोग सर प्रेमा कंप्यूटर से, तो मैंने प्रेमा लिख दिया सर यहाँ। अब प्रेमा लिख दिया ना, तो अब एंटर का बटन प्रेस करती है, इस पूरे सेल के ग्रुप का नाम सर प्रेमा हो गया। अब मुझे बस इतना याद रखना, अब मुझे मान लीजिए काउंट फंक्शन लगाना है, तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू सिंबल काउंट लिखूंगा। मैं बहुत फ्री हो गया हूं सर यहाँ पर। देखिए मैंने काउंट लिखा और काउंट लिखने के बाद मैं P लिखूंगा और R लिख दूंगा। देखिए वो दिखाने लग जाता है कि आपके डेटाबेस का नाम प्रेमा तो नहीं है कहीं, तो हमको लगता है हाँ वही है। और इसके बाद मैंने पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, एंटर बटन प्रेस कर दिया, सर आ गया। तो ये जो चीज थी, ये इसको कहते हैं, एक बार मैं फिर से इसको करके दिखाऊंगा, और इसको हम लोग और भी मेनूज के थ्रू कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर अवेलेबिलिटी यूज होती है। जैसे ये जो फार्मूलाज है ना, इसके अंदर भी सर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर होते हैं नेम मैनेजर। यहाँ पर नेम मैनेजर होता है सर। यहाँ से आप ये देखिए, जो प्रेमा मैंने बनाया था आप बना सकते हैं, और यहाँ पर न्यू करके आप कोई और नेम मैनेजर का नाम दे सकते हैं और उसके कंटेंट को लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक नेम मैनेजर में इसका नाम दे दिया ICAI, है ना, और वर्कबुक दे दिया और कुछ कमेंट लिख दिए, तो ये बनाया जा सकता है। लेकिन पहले मेरे को इसकी रेंज सेलेक्ट करनी चाहिए थी, बस वो मैंने नहीं की, तो आप कर लीजिएगा। और यहाँ से भी अपन इसको बना सकते हैं, इसको डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन चुका है, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं, पहले इसको बना के लाना पड़ता है। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, 11, 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यूज ले ली, और आप पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद फिर जब आप यहाँ जाएंगे नेम मैनेजर में, तो यहाँ पर जाकर के अब आप यहाँ पर पहले अगर चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से। वो पूछता है इसको डिलीट करना है क्या, यस, मैंने इसको डिलीट करके भी दिखा दिया। नया बनाना है क्या, मैंने कहा यस, तो मैंने बोला ICAI, मुझे इसको नया बनाना है, और उसके बाद मैंने ओके का बटन प्रेस कर दिया, ये बन गया सर। और इसके बाद इसमें जो वैल्यूज थी वो देखिए हमारी वाली आ गई हैं। इसको आप क्लोज कर सकते हैं और अपन इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे इज इक्वल टू सिंबल मैंने लिखा फिर से सम, और सम लिखने के बाद ब्रैकेट ऑन किया, और मुझे इस वक्त सम ICAI वाले का करना है, तो मैं लिखूंगा ICAI, ऐसा मैंने लिख दिया। और ICAI यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते थे कुछ भी, और इसके बाद मैंने एंटर बटन प्रेस किया। इन सब का सम टोटल 25 ही आएगा। इसको चेक करने के लिए अगेन हम यहाँ पे ऑल्ट इज इक्वल टू का बटन दबा सकते हैं, ये आ गया 25, ये क्रॉस चेक हो गया। तो सर इस तरीके से हमने दूसरा फंक्शन आपको बताया जिसका नाम था दूसरी रेंज मैंने आपको बताया जिसका नाम था रेंज रेफरेंस, और नेम्ड रेफरेंस। नेम्ड रेफरेंस बनाने का सर फायदा क्या है, देखिए अगर मैं शीट 2 में चला जाता हूँ, और शीट 2 में जाने के बाद मैं शीट 2 में काम करता हूँ, और मुझे यहाँ पर सम निकालने की इच्छा हुई, और मैंने लिखा सम, पैरेंथेसिस ऑन किया, और मैंने लिख दिया प्रेमा। देखिए प्रेमा नाम की मुझे डेटाबेस दे देगा, ये डेटा दे देगा, और मैं इसमें यहाँ पर भी सम निकाल सकता हूँ। मतलब
ये जितनी भी मेरी वर्कबुक है, इसमें याद रखिएगा आपकी वर्कबुक मतलब जिसमें बहुत सारी वर्कशीट्स हो, यानी एक जो आप ओपन करते हैं वो वर्कबुक होती है, उसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, और इसको हम लोग कहते हैं स्प्रेडशीट। ये जो एक होती है इसको कहते हैं स्प्रेडशीट। तो यहां तक सर हम लोगों को क्लियर हो गया है। और अब मैं तीसरी चीज ले रहा हूं जिसका नाम है सेल रेफरेंस। तो एक बार मैं फिर से अपनी स्क्रीन दिखा दूं। ये देखिए मैंने आपको बता दिया है, सेल रेफरेंस बता दिया है, सॉरी सेल रेफरेंस नहीं बताया, रेंज रेफरेंस मैंने बता दिया, और नेम्ड रेफरेंस मैंने आपको दो चीजें बता दी। नेम्ड रेफरेंस मतलब नेम से जिसका रेफरेंस दिया जाए, सेल रेंज रेफरेंस मतलब रेंज से जिसका रेफरेंस दिया जाए। और अब मैं बता रहा हूं सेल रेफरेंस। सर सेल रेफरेंस में एक शीट का रेफरेंस हम दूसरी शीट में देखकर कैलकुलेशन करते हैं। ये सर करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि किस तरीके से हमको इसकी प्रैक्टिस पे काम करना है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 15 है और मुझे सम चाहिए, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू सिंबल सम। अभी इस वक्त मैं शीट 2 पर हूं सर। अब मैंने यहां लिखा सम, और सम लिखने के बाद मैं जाता हूं शीट 1 में। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन होते हैं, वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद मैंने पूरी सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब सेल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए वहां पर वो बताता भी है कि इसका नाम आपने प्रेमा दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। और अब यहीं पर इसको सर क्लोज कर दीजिए और एंटर का बटन प्रेस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तो खैर डबल मेरे से गलती से ब्रैकेट लग गए, तो ये आंसर आ गया। एक बार अपन फिर से करते हैं। इज इक्वल टू सिंबल, मैं यहाँ जाता हूँ शीट 1 में, और ये पांचों वैल्यूज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और बस यहीं पर एंटर का बटन प्रेस कर दीजिए। ब्रैकेट्स भी लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ पर इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा सम, पैरेंथेसिस ऑन की, इसको कहते हैं सेल रेफरेंसेस। ये वाली ले लेते हैं इस बार अपन, ये ले ली, और बस एंटर बटन प्रेस कर दिया। देखिए 25 आ गया। तो यहाँ पर कई बार जो बेसिक गलती हो जाती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो गलती होती है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ गलती क्या होती है। इज इक्वल टू सिंबल, यहाँ पर हम जैसे सम या एवरेज लिखते हैं। चलिए एवरेज लिखा मैंने, तो जैसे ही मैंने सर एवरेज लिखा, एवरेज लिखने के बाद मैं जैसे ही शीट 1 पे जाता हूं और मैं सपोज इन सब का एवरेज निकालता हूं, और फिर मैं शीट 2 पे आ जाता हूं। अब देखिए सर यहां पर देखिए एनोटेट करके मैं दिखाता हूं आपको। देखिए एक सेकेंड, देखिए यहां पर देखिए क्या हुआ। यहां पर देखिए ये शीट 2 लिख गया, जबकि हमारा डेटा सर शीट 1 पे है, और बस यही गलती हो गई हमसे। तो शीट 1 पे ही रहते हुए ऑपरेशन कंप्लीट कर देना है सर। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल ध्यान रखिएगा, शीट उस पे रहते हुए अपने को ऑपरेशन कंप्लीट करना है। अब अगर यहाँ पर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए इसको मैं क्लियर ऑल ड्राइंग करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं इसको पैरेंथेसिस क्लोज करके और एंटर बटन प्रेस करूंगा, तो आंसर अभी आ इसलिए गया क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है वो शीट 2 के अंदर जो लिखा हुआ था वो एवरेज फंक्शन के साथ था, आंसर आ गया। कभी कभी ये आंसर नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने आंसर्स को वहीं पे कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं एवरेज फिर से निकाल करके दिखाता हूँ। देखिए इज इक्वल टू सिंबल सम पैरेंथेसिस, और मैं यहाँ जाता हूँ। अब ये वाली मैंने सेल सिलेक्ट कर ली, और फिर इसके बाद यहीं पर क्लोज कर दीजिए सर आप, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए आ गया। फिर से एक बार करके दिखाऊं, सम पैरेंथेसिस, देखिए फिर से मैं जाता हूं। अब ये वाली सेल सिलेक्ट कर लेते हैं और बस इसको यहीं पे क्लोज कर दीजिए। ये देखिए, है ना, ये देखिए इस तरीके से। आप इधर मत आइएगा वरना कई बार आंसर्स नहीं आते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से बताया, इसको कहते हैं सर सेल रेफरेंसेस। तो एक मैंने आपको बताया नेम्ड रेफरेंसेस, एक था रेंज रेफरेंसेस, और एक था सेल रेफरेंसेस। इसके अलावा एवरेज मैंने आपको बताया। अब सर मैं ये पूरी शीट एक नई ले लेता हूं, और सर बीच में थोड़ा सा मैं एक चीज और बता दूं कि मैं जब पढ़ाता था वहाँ पे ICAI में आके, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो आखिरी वाले सेशन में रहते थे उन लोगों को, तो उस वक्त मैं एक चीज उनको बताता था, तो कहते थे ये सर बहुत अच्छी चीज है सर, आप बता दिया करो पहले। तो मैं बता देता हूँ वो एग्जैक्टली होती क्या है। देखिए सर शीट में है ना, जब अपन राइट क्लिक करते हैं, सब लोग करिएगा, तो ये इंसर्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं। इसके अंदर एक स्प्रेडशीट सॉल्यूशन होता है सर, इसके अंदर लोन अमोर्टाइजेशन का
ऑलरेडी बना बनाया टेम्पलेट है, इसकी सर आप लोगों को प्रैक्टिकली काफी जरूरत पड़ सकती है। ये देखिए, इसको यूज तो आपको करके देखना पड़ेगा। इसके अंदर लोन अमाउंट और ये जो पूरी शीट बनाना पड़ती है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये सब शीट बहुत अच्छे से आपकी बन के आ जाएगी। और ये चूंकि मेरा एक्सेल अभी 2007 है तो इसमें इतनी अच्छी नहीं आई है, बाकी बहुत अच्छी शीट आती है सर। अगर आप इसको करके देखें एक बार तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये शीट आती है, इसमें कई और भी हैं सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये शीट 3 पे हम फिर से जाते हैं और यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे तो इसमें ये स्प्रेडशीट सॉल्यूशन में आप ब्लड प्रेशर है, एक्सपेंस रिपोर्ट भी है, मंथली पेंशन पर्सनल मंथली बजट भी अपन लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इसको मैंने सर क्लिक किया, देखिए पर्सनल मंथली बजट आ जाता है। इसमें थोड़ा सा अपने को वर्कआउट तो करना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ है और कैसे इनकी वैल्यूज बदलती हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छी यूटिलिटी है जिसको हम लोग कर सकते हैं। अभी मैं इसको हाल फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ शीट 3 के ऊपर। ये था मैंने आपको जो बताया कि इस तरीके से इंसर्ट फंक्शन में हम जाकर के काम कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 फंक्शंस और इंट्रोड्यूस करता हूँ। एक फंक्शन है काउंट आ और एक फंक्शन है काउंट। तो दोनों फंक्शंस में क्या डिफरेंस है मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 1 2, थोड़ा इसको जूम कर दें, इसको मैंने जूम कर दिया सर। मैंने लिखा 1 2 3 4 5। अब मैंने इज इक्वल टू सिंबल लगाया। इज इक्वल टू सिंबल लगाने के बाद मैं लिखता हूं काउंट आ। देखिए काउंट आ ए, कुछ लोग काउंट ए बोलते हैं, कुछ लोग काउंट आ बोलते हैं। अब इसमें मुझे टोटल 5 वैल्यूज दिख रही हैं। मैंने इस पूरे को रेंज रेफरेंस के साथ सिलेक्ट किया और पैरेंथेसिस क्लोज कर दी, एंटर देखा 5 बिल्कुल सही है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, 5 वैल्यूज है मेरी। लेकिन मैंने अब यहाँ पर सर सबसे ऊपर प्रेमा लिख दिया। जैसे ही मैंने प्रेमा लिखा, अब मैंने यहाँ पर फिर से काउंट फंक्शन चलाया। देखिए अब मैं लगाता हूँ सर काउंट आ नहीं, अब मैं यहाँ लिखाता हूँ काउंट, है ना। अब कोई भी फंक्शन प्लस साइन से चलता है, चलिए प्लस साइन से चलाकर देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा काउंट, यहाँ मैंने लिखा काउंट फंक्शन। और काउंट फंक्शन लिखने के बाद सर मैंने पूरा प्रेमा से लेकर के ये 5 वैल्यूज मैंने सिलेक्ट कर ली और पैरेंथेसिस क्लोज की। अब देखिए काउंट फंक्शन मुझे बताएगा 4, यानी जो प्रेमा स्ट्रिंग लिखी हुई है उस प्रेमा स्ट्रिंग को उसने नॉन न्यूमेरिक माना, न्यूमेरिक नहीं माना। इसके अलावा काउंट आ फंक्शन इसे एक न्यूमेरिक वैल्यू और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करता है। काउंट अ न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करता, इसलिए इसका आंसर अभी भी 5 ही रहा। एक बार मैं, अगर आप चाहें तो एक बार मैं इसको फिर से लगा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने लिखा इज इक्वल टू सिंबल काउंट आ, ये फंक्शन मैंने लगाया और इसके बाद मैंने ये 5 वैल्यूज यहाँ से सिलेक्ट की और पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस किया। देखिए ये 5 ही आ रहा है। मतलब ये जो स्ट्रिंग मैंने प्रेमा लिखी हुई है इसको उसने कहीं से कहीं तक कोई भी एक वैल्यू नहीं माना, यानी इसके लिए वैल्यू नहीं है। और ये किसके लिए वैल्यू है, तो काउंट आ के लिए ये वैल्यू है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के लिए चैट पे भेज देता हूँ कि काउंट आ और काउंट, तो काउंट लिख देता हूं मैं, काउंट काउंट ओनली, किसको काउंट करता है ये, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज। ये सर न्यूमेरिक वैल्यूज को ही काउंट करेगा। और काउंट आ ये स्ट्रिंग प्लस न्यूमेरिक दोनों को काउंट करता है। तो ये दोनों फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही सर एवरेज और एवरेज आ फंक्शंस भी होते हैं, तो हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। और उसमें तो थोड़ी सी और एक वैरायटी होती है, वो भी मैं ले लूंगा। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया। 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है सर। अब मुझे निकालना है एवरेज, तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था ऑल्ट एच यू ए, है ना, इससे एवरेज आ जाता है। ये देखिए मैंने पूरा एक्चुअली में प्रेस नहीं कर पाया, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर समय उसके लिए नहीं खराब करूंगा। यहाँ पूरी रेंज सिलेक्ट की मैंने और यहाँ पर जाकर के मैंने, गड़बड़ी हो रही है, इसके बाद मैंने ये पूरी रेंज सिलेक्ट की और पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर बटन, ये एवरेज आ गया, ये एवरेज है। अब मैं यहाँ पर सर एवरेज आ निकाल रहा हूँ, देखिए कैसे। तो एवरेज आ, ए वी ई आर, ये एवरेज ए फंक्शन या एवरेज आ आप कह सकते हैं। फिर मैंने इन 5 वैल्यूज को सिलेक्ट किया
ये देखिए 5 वैल्यूज मैंने सिलेक्ट की। अब पांचों वैल्यूज सिलेक्ट करने के बाद ये एवरेज अ फंक्शन है। अब इसके बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दिया तो दोनों का आंसर सेम आया। लेकिन ये डायनामिक होते हैं सर, है ना। डायनामिक होने का मतलब मैं ऊपर कोई चेंज करूंगा तो नीचे भी आना है। अब मैं यहां पर मैं प्रेमा लिखता हूं, देखिए आंसर बदल गया। अब देखिए आंसर कैसे बदला और क्या हुआ। तो वही वाली बात है कि एवरेज क्या करेगा, एवरेज निकालने के लिए ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज, जैसे काउंट है ना, न्यूमेरिक वैल्यूज को ही काउंट करता है, वैसे एवरेज डिवीजन करने के लिए टोटल जो न्यूमेरिक नंबर्स होंगे उनको ही काउंट करेगा, उनके अलावा किसी को काउंट नहीं करेगा। तो उसने प्रेमा को काउंट नहीं किया, इसलिए एवरेज ज्यादा आया, एवरेज अ कम आया। एवरेज अ ने क्या किया, डिवाइड करते समय इन पांचों वैल्यूज का तो सम किया उसने, सॉरी इन 4 वैल्यूज का सम तो किया, और डिवाइडेड बाई उसने कितना कर दिया। अगर हम ये देखें तो ये उनका सम 14 होता है। आप इसको करके देखेंगे तो 14 होता है। 14 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया सर उसने, तो ये आ गया 3.5 ऊपर वाला आंसर। और अगर मैं 14 डिवाइडेड बाई 5 करूं तो ये आ जाएगा नीचे वाला आंसर। यानी नीचे वाला जो आंसर है वो आंसर ऊपर वाले आंसर से डिफरेंट होता है, बिकॉज ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एवरेज है। तो वो एवरेज करने के लिए सम तो करना पड़ता है, लेकिन डिवीजन करते वक्त एवरेज ने भी सम तो इन चारों का ही किया था, लेकिन डिवाइड करते वक्त उसने काउंटिंग केवल 4 की, और जबकि एवरेज अ ने काउंटिंग 5 कर ली। अब एक इसमें वैरायटी और दिखाता हूं सर मैं आपको। देखिए इसमें मैं प्रेमा की जगह यहां पर लिखता हूं ट्रू। आज के अपने इस सेशन का जो नाम है वो भी है, जो मैंने आपको बताया था कि डिसीजन मेकिंग। तो ट्रू फॉल्स सर डिसीजन मेकिंग होते हैं। अगर ट्रू आंसर आता है, कंप्यूटर अगर आपको रिजल्ट ट्रू में देता है तो इसका मतलब करेक्ट डिसीजन है, और फॉल्स आता है तो इसका मतलब डिसीजन गलत है। ये मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रू लिखा हुआ है। अब देखिए ट्रू में और रिजल्ट चेंज हो गया। अब क्या हुआ, यहां पर जो आया 3.5, ये देखिए ये तो वही आ रहा है, यानी ये तो 14 डिवाइडेड बाई, ये वही हुआ 14 डिवाइडेड बाई 4, ये तो वो का वही है। लेकिन यहां पर सर क्या हो गया वो मैं आपको बताता हूँ। यहां हुआ सर 15 डिवाइडेड बाई 5। अब आप बोलोगे सर इसको 15 ये कैसे हो गया। तो ये ट्रू का मतलब मैं थोड़ा सा आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ, यहां दिखा देता हूँ। देखिए ट्रू यानी होता है कंप्यूटर में हमेशा, चाहे कोई भी लैंग्वेज पढ़े, एक्सेल पढ़े, ट्रू का मतलब होता है 1। तो ये सर 1 है, यहाँ पर 1 है। इसका एक ये जो ट्रू लिखा हुआ है इसका मतलब 1 है, ये 1 है सर। और एक होता है फॉल्स, और फॉल्स का जो नंबर होता है सर वो होता है 0। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं, मतलब फॉल्स लिख दूं, यहां अगर मैं फॉल्स लिख दूं तो आंसर मेरा फिर से वही आ जाएगा, क्योंकि ये 0 की काउंटिंग करके आंसर 14 ले लेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं। इसको क्लियर कर दिया मैंने। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं जो हमारा एवरेज है यहाँ पर मैं फॉल्स लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा, देखिए 2.8 फिर से वो का वही आंसर। तो मैंने आपको 4 फंक्शंस बताए, और कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूँ जो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। ये है कंट्रोल एंटर, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट, और ये देखिए बहुत ज्यादा वैल्यूज आ गई, सॉरी वो गलती हो गई। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर का बटन दबाइएगा। 1 मिनट, कंट्रोल शिफ्ट कोलन, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट कोलन, कंट्रोल शिफ्ट और कोलन। मैं एक बार लिख के भेज देता हूँ, एक बार मैं करके और दिखा देता हूँ। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट कोलन, तो ये टाइम आ जाता है, कंट्रोल शिफ्ट कोलन। और कंट्रोल कोलन का बटन दबाएंगे ना तो सर डेटा जाएगी। ये थोड़ा सा वेरिएशन है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको चैट पर लिख के भेज सकता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट कोलन, और है कंट्रोल शिफ्ट कोलन। कंट्रोल कोलन से आपको मिलेगी डेट, और कंट्रोल
के साथ शिफ्ट प्लस कोलन। अब एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूं। देखिए मैं यहां पर दबाता हूं कंट्रोल कोलन, तो ये आ गया, टाइम आ गया। और अब मैंने इसको दबाया कंट्रोल शिफ्ट कोलन, सॉरी, ये टाइम आ गया। और कंट्रोल के साथ सिर्फ कोलन का बटन प्रेस किया तो ये आ गया टाइम। और क्या प्रेस किया था मैंने, कंट्रोल के साथ सिर्फ कोलन, हाँ ये आ गई डेट। कंट्रोल के साथ सिर्फ कोलन प्रेस करना है तो डेट आएगा, कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट एंटर कंट्रोल शिफ्ट कोलन करेंगे तो टाइम आ जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हो गई, काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं इसके अंदर की। अब चलिए, अब मैं यहाँ चूंकि आज का जो हमारा सेक्शन है वो डिसीजन मेकिंग का है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले रहा हूँ सर, उसका नाम है इफ। लेकिन इफ की शुरुआत करने से भी पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं कि सर एक फ्रेश एक्सेल शीट ले लेते हैं, देखिए यहां पर, और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी भी सेल पे काम करते हैं और उसमें आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यहां मैंने लिखा है कि स्ट्रिंग्स आर टू बी ऑलवेज एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। अगर आप इंटीजर बोलते हैं तो 10 और 10.5 लिखते हैं, इसका मतलब फ्लोट वैल्यू होती है। फ्लोट मतलब रियल नंबर, पॉइंट वाला। और अगर आप कोई भी चीज डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग होती है सर। लेकिन इसमें सर कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता था यहाँ पे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप किसी फार्मूले में स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब किसी का नाम, जैसे अनिल सर का नाम है अनिल, मेरा नाम है आनंद, प्रेमा, तो अगर फार्मूले में यूज कर रहे हैं तो डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। और फार्मूले में अगर आप किसी सेल का रेफरेंस दे रहे हैं तो वहां डबल कोट्स नहीं लगाना है। मैं इसको करके दिखाता हूं, और मैं इसको इफ एल्स फार्मूले के साथ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो सर मैं लिख रहा हूं यहां पर कि यहां मैंने लिखा है 10 और यहां मैंने लिखा है 12। तो ये दो वैल्यूज हो गई, एक A1 सेल में है, एक A2 सेल में। अब मैं यहां लिखता हूं इफ। सर इफ क्यों यूज होता है तो मैं आपको बता दूं, इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये कंडीशन को चेक करता है कि कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो ये इफ वाले पार्ट में जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एल्स वाले पार्ट में चला जाता है। तो मैं अभी यहाँ पर आपके सामने इफ लिख रहा हूँ, मैंने इफ को टैप बटन प्रेस किया। अब इसमें देखिए सर नीचे हेल्प भी आती है, अगर आप थोड़ा सा कभी अपने को यूज करते समय कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर सर थोड़ी सी एरर भी आ जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर एक हेल्प आई थी, अभी आपने देखा होगा। तो अभी मैं यहाँ एनोटेशन ऑफ करता हूं और इसको क्लियर भी कर देता हूं। क्लियर का ऑप्शन कहां चला गया, ठीक है। चलिए तो मैं दूसरे इसमें लिख देता हूं, कोई बात नहीं। एक मिनट, क्लियर का ऑप्शन यहां से, ठीक है। अब यहां से मैं इसको एक जगह नीचे इफ लिख देता हूं। यहां मैंने लिखा इफ इज इक्वल टू सिंबल, मैंने लिखा इफ। अब मैंने लिखा पैरेंथेसिस और मैंने बोला ये वाली सेल, सॉरी, इज इक्वल टू सिंबल इफ, मैंने बोला ये वाली सेल इज ग्रेटर देन, क्या ये वाली सेल है? देखिए नीचे मेरे को हेल्प भी आ रही है, अगर है तो मेरे को प्रिंट करके बताओ आनंद। अब देखिए फार्मूले में मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे डबल कोट्स लिखना पड़ेगा, और नहीं तो अमित, या चलिए अनिल लिख देते हैं, अनिल सर, डबल कोट्स क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। अब देखिए हमारी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो 10 इज ग्रेटर देन 12, हमारी कंडीशन है सर फॉल्स, तो अनिल सर प्रिंट होगा। ये देखिए, तो ये एक थोड़ी सी बात हम लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए कि कब क्या प्रिंट होगा, है ना। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा इफ
इज इक्वल टू सिंबल, मैंने लिखा if, और मैंने लिखा ये वाली सेल इज ग्रेटर देन ये वाली सेल है, अगर है तो कॉमा। अब मैंने इसकी जगह, एक मिनट यहां पर एक और प्रोविजन कर दें, अगर मैंने यहां पर आनंद लिखा होता और यहां सर मैंने अनिल सर लिखा होता, तो फार्मूले में यूज करने के लिए इनको डबल कोट्स में नहीं लगाया जाता सर, बस ये ध्यान रखिएगा। फार्मूले में सर इनको यूज करने के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहां पर आपको इनको डबल कोट्स में नहीं लिखना है। देखिए अब मैं फार्मूला लगाता हूं, मैंने लिखा इफ, पैरेंथेसिस ऑन की, अब मैंने बोला 12 इज ग्रेटर देन 10 है क्या, है, तो मैंने कहा आनंद प्रिंट हो। अब यहां डबल कोट्स नहीं लगाने हैं सर, और यहां पर मैंने कहा अनिल सर प्रिंट हो, बस पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, एंटर बटन, आनंद प्रिंट हो गया। तो ये हमारा इफ और एल्स यूज करके मैंने दिखाया। अब आप बोलोगे सर इसमें एल्स दिखाई नहीं देता है, सर उसमें एल्स मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इफ, और जैसे मैंने इस पैरेंथेसिस को ऑन किया तो यहाँ पर सर देखिएगा, आप यहाँ पर लिखा है लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद लिखा है कॉमा, बहुत छोटा सा कॉमा है यहाँ पर, फिर ये ट्रू वैल्यू लिखी हुई है, मतलब कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हम इस जगह जाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग एल्स पार्ट में आएंगे। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया था। अपन इसको कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे 100 इज ग्रेटर देन 95 कॉमा, यहाँ मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया सपोज प्रेमा, डबल कोट्स क्लोज कर दिया। अब देखिए मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूं और वो भी फंक्शन के अंदर, तो मुझे डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, और नहीं तो मैंने यहाँ डबल कोट्स के अंदर लिख दिया अनिल, अनिल सर लिख दिया, ये हो गया, डबल कोट्स क्लोज कर दिया, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, एंटर का बटन प्रेस कर दिया, आ गया प्रेमा। तो हम इस तरीके से एल्स पार्ट का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको एल्स पार्ट यूज नहीं करना है सर तो वो भी चलेगा। जैसे मैंने लिखा इफ, मैंने लिखा यहां पर एक फंक्शन भी मैं यूज करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा इसके अंदर। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इज इक्वल टू सिंबल लेन, ये एक फंक्शन है सर जो मैं आपको दिखाने वाला था। लेन ये क्या करता है, लेंथ निकालता है। अब मुझे लेंथ निकालनी है, तो लेंथ मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन माय स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ लेन लिखा। फिर से रूल वही है कि अगर फार्मूले में आप किसी का नाम यूज कर रहे हो तो डबल कोट्स के अंदर लिखना है, और अगर वो नाम सेल में लिखा हुआ है तो आपको डायरेक्ट सेल यूज करना है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, बस पैरेंथेसिस क्लोज कर दी, 5, देखिए आ गया। अब अगर गलती से कभी हम यहां पर डबल कोट्स लगा दें सर, देखिए अरे ये तो फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें शायद नहीं लगा हुआ, हाँ, अगर मैं गलती से इसमें सर डबल कोट्स लगा दूं, ये देखिए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ होने लगती है। देखिए मैंने लेन लिखा और मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, एंटर बटन, ये देखिए 7 दिखा देगा, ये सही नहीं है, और वो डबल कोट्स को भी कैरेक्टर मान लेगा। तो इसलिए ये हम लोगों से गलती ना हो जाए, इसलिए इस बात का थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। बाकी जब भी मैंने आपको एक ही फार्मूला बता दिया, एक छोटा सा जिसमें मैंने ऑपरेशन बताया कि अगर आपको कोई सेल यूज करनी है, उसमें आपने स्ट्रिंग लिखनी है, स्ट्रिंग मतलब जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं वो, तो उस वक्त जब आप सेल में उसको लिख रहे हैं तो डबल कोट्स मत लगाइए। अगर सेल से बाहर उसको स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं तो आपको डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये मैंने फंक्शंस आपको बता दिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको इफ बता दिया है, स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, उसमें से एक लेन हो गया है। इसके अलावा कुछ फंक्शंस और हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिखा था। ये हमारी पहली जो थी ग्रेटर देन, लेस देन, नेम्ड रेफरेंस, रेंज रेफरेंस, स्ट्रिंग्स, ये सारा कंप्लीट हो गया है। पैरेंथेसिस हम लोग फार्मूलेज के अंदर यूज करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं अगला चलता हूं, और वो ये है कि स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस हमारे पास हैं, सारे डिसीजन फंक्शंस है सर। लेन है, मिड है, लेफ्ट है, राइट है, मिड है, सब्स्टिट्यूट है। ये फंक्शंस भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, लेकिन इसके पहले एक बहुत ही अच्छा फंक्शन मैं आपको बता दूं जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शन मैं आज बिल्कुल लिख के लेकर आया था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अपन प्रोग्राम्स जब भी फंक्शंस वगैरह चला, सम तो सबको पता होता है, चलिए एवरेज भी सबको पता होता है, काउंट की जानकारी कम होती है, लेकिन हाँ
एक फंक्शन सर मेरे लिए, मैंने मतलब जब भी पढ़ाया बच्चों को तो ये बच्चों को जरूर पढ़ाया, मैंने कहा ये फंक्शन तुम कर लो यार। और वो फंक्शन है सर, मैं आपको दिखाता हूं, मेरा एनोटेशन कहाँ चला गया। हाँ चलिए, वो फंक्शन है सर ये सब टोटल। ये फंक्शन क्या करता है, ये जो फंक्शन है ना सर सब टोटल, ये फंक्शंस का भी फंक्शन है। ये सब फंक्शंस का फंक्शंस कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये फंक्शंस का भी फंक्शन है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं इसके अंदर? इसके अंदर एवरेज है सर, इसके अंदर सम है, इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो आजकल ये आजकल जो बच्चे मशीन लर्निंग और ये सब करते हैं उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कई बार निकालना पड़ता है, आप लोगों को भी निकालना पड़ता है। कई बार सीरीज के बारे में जानकारी देने के लिए लो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो जो वैल्यूज हैं वो कम डिफर करती हैं एक दूसरे से। अगर ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन, आजकल शेयर मार्केट में भी बहुत बार ये मूविंग एवरेज वगैरह निकालने से पहले लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं सर, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमको निकालना रहता है और बहुत सारी चीजें, वेरिएशन बहुत सारी चीजें निकालनी है। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। एनोटेशन मैं बंद कर रहा हूं और मैं आपको सब टोटल फंक्शन लिख के दिखाता हूं। देखिए मैं अब चलता हूं फिर से एक नई शीट के ऊपर और थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अब देखिए मैं सब टोटल, मैं बहुत छोटी वैल्यूज लेता हूं, बहुत सिंपल वैल्यूज लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मुझे सब टोटल निकालना है सर, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू सिंबल, ये फंक्शन का नाम सब टोटल है, तो मैंने लिखा सब टोटल, ये मैंने लिख दिया, ये सब टोटल लिखा। सब टोटल लिखने के बाद सर देखिए यहाँ पर ढेर सारे फंक्शंस की लिस्ट आ गई मेरे सामने। अगर आप देख रहे होंगे, आपने मेरे साथ कर रहे हैं अगर कुछ, तो आप देखिए यहाँ पर आगे उसमें लिखा काउंट, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत सारे फंक्शंस, और नीचे उन्हीं फंक्शंस को फिर से रिपीट किया है 3 डिजिट्स में भी। तो 2 सिंगल डिजिट के साथ 3 डिजिट्स में भी है वो फंक्शन। तो अब हम अगर इसमें एवरेज लिखते हैं, जैसे मुझे एवरेज ही निकालना है, तो एवरेज अपन ने इसका निकाला हुआ है सर 3 आता है। तो मैंने एवरेज के लिए यहाँ पर 1 लिखना है या इसको ही प्रेस कर देना है, एक ही बात है, बना जाएगा। इसके बाद सर मुझे रेंज देनी है और कुछ नहीं करना है, बस बहुत छोटा सा ये रेंज दे देंगे, ये रेंज दे दी। एक सेकेंड, क्या कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने लिखा इज इक्वल टू सिंबल सब टोटल, यहाँ लिखा मैंने 1, और 1 लिखने के बाद मैंने सर रेंज सेलेक्ट की, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई थी, पैरेंथेसिस क्लोज किया और एंटर। ये देखिए एवरेज आ गया। तो एक ही फंक्शन, मतलब ये फंक्शंस का फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर नेस्टेड हैं सर, बहुत सारे फंक्शंस को क्लब करके बैठा हुआ है और आप कुछ भी निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है इंटरव्यू वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सब टोटल क्या करता है। तो सब टोटल जो है वो फंक्शंस का फंक्शन है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, और अगर क्या होता है कई बार हमको अलग अलग फंक्शंस याद भी नहीं रहते हैं तो इस फंक्शंस का यूज किया जा सकता है फॉर सब टोटल। देखिए अब मुझे मान लो सम निकालना है सर, वो भी सब टोटल से, तो मैं लिखूंगा सब टोटल, और सब टोटल निकालने के बाद मेरे को अगर काउंट करना है या सम निकालना है, देखिए सम 9 नंबर पे है तो मैं यहाँ लिखूंगा 9, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद मैंने इन सब का यहाँ से उठा करके 5 तक की वैल्यूज का रेंज बनाया, एंटर बटन प्रेस किया तो आ गया 15। तो ये है सर सब टोटल फंक्शन। तो सब टोटल फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से ये चलता है। अब सब टोटल फंक्शन के साथ आप मैक्स है, मिन है, बहुत सारे फंक्शन हैं। चलिए एक और हम करके देख लेते हैं सब टोटल के साथ। जैसे मैंने लिखा, कहीं पे भी लिख सकते हैं सब टोटल, ये लिखा मैंने सब टोटल। अब सब टोटल के साथ सर देखिए मेरे पास एक प्रेमा नाम की जो मैंने ग्रुप बनाया था ना, वो प्रेमा का क्लब करके लिख दिए थे 5 वैल्यू, उनका भी देखिए उसका यूज हो सकता है क्या। तो मैं यहाँ पर जैसे मानू लिखता हूँ मिन, तो मिन के लिए नंबर क्या है 5, तो मैंने लिख दिया 5 सर। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ प्रेमा लिख देना है। तो ये आ गया प्रेमा, मैंने टैब का बटन प्रेस किया, एंटर बटन प्रेस किया, देखिए 1। तो उन 5 वैल्यूज का जो मिनिमम फिगर है, जो मिनिमम वैल्यू थी वो सर 1 थी। तो इस तरीके से हम लोग सब टोटल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब मैं कुछ फंक्शंस आप लोगों के स्ट्रिंग्स के भी ले रहा था, क्योंकि इसके मैंने कुछ ये सब टोटल ले लिया, इफ एल्स ले लिया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, बहुत सारे फंक्शन मुझे
बताने की, डिलीवर करने की इच्छा थी, उसमें से मैंने लेन और ये जो स्ट्रिंग्स रिलेटेड फंक्शंस हैं वो जल्दी जल्दी मैं ले लेता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और चीजें, ये सर ग्रेटर देन के साइन के साथ है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये पता है, इसलिए मैंने इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया है। मैं यहाँ पर इफ एल्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, इफ एल्स आपको समझा चुका हूँ, और कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पर जरूर लिखे थे जो अभी आए थे हमारे पास, कहाँ गए वो, ऊपर थे, हाँ ये थे, लेन, मिड, लेफ्ट, राइट, मिड और सब्स्टिट्यूट। मैं इसमें से जल्दी जल्दी आपके सामने कुछ, ये सारे स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस हैं, तो डिसीजन के हैं, तो आपको बताएंगे किस तरीके से इनका यूज होता है। तो मैं इन वैल्यूज को ले रहा हूँ, और देखिए कैसे, तो मैं आपको यहाँ पर आनंद लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे मैंने प्रेमा लिख दिया, और डबल कोट्स के अंदर मान लो मैंने इस फंक्शन का यूज किया जिसका नाम था लेफ्ट। अब मुझे लेफ्ट से 2 कैरेक्टर काटने या 3 कैरेक्टर काटने, 3 काटते हैं, चलिए, तो RPRE आएगा ना, तो मैंने फंक्शन यूज किया LEFT, ये लेफ्ट आ गया। इसके बाद वो आपको बताता है क्या, तो अपन ने बोला भाई ये टेक्स्ट, इसको टेक्स्ट कहते हैं हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद आपने बोला मुझे इसको काटना है, कितने कैरेक्टर काटने हैं, तो हमने बोला 3 काटने, ये देखिए 3 काट के दे देगा। कई बार ये फंक्शंस बहुत काम के होते हैं सर, और ये हमने यहाँ पर कर लिया है ना। अब ऐसे ही राइट है, चलिए राइट कर लेते हैं, RIGHT, राइट फंक्शन लिखा। इसके बाद मैंने बोला भाई मुझे यहाँ से 3 कैरेक्टर काट के दो, तो EMA आ जाएगा, तो मैंने यहाँ से लिखा 3, तो ये 3 कैरेक्टर काट के दे देगा। अच्छा, इसकी जो नंबरिंग होती है सर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो नंबरिंग होती है ना, वो नंबरिंग जो है, कई बार हम लोग जो पाइथन और C लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो इसकी नंबरिंग, इसकी स्क्रिप्ट की नंबरिंग यहाँ से 0 से होती है, पर हमारे यहाँ 1 से होती है, इसलिए मैं यहाँ 1 ही लिख रहा हूँ। ये 1 नंबर का कैरेक्टर है, ऐसे ही ये 2, ऐसे ही ये 3, 4, और ये आखिरी नंबर सर 5 रहेगा। कोई 0 1 2 3 से स्टार्टिंग नहीं थी, बड़ा क्लियर है, एक्सेल इस मामले में बहुत क्लियर है, इनका बड़ा कंफ्यूजन होता है, नहीं तो बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है कई बार। तो ये चीज हो गई सर, हमने यहाँ पर कैरेक्टर काट लिया, मैंने आपको लेफ्ट फंक्शन बता दिया, मैंने आपको राइट फंक्शन, मैं आपको बताता हूँ मिड फंक्शन कैसे चलाते हैं सर। देखिए मिड, मैंने चलाया मिड। अब मिड चलने के बाद मैंने बताया टेक्स्ट प्रेमा, मैंने बोला स्टार्ट नंबर मेरे को E और M चाहिए, मतलब PRE और M, तो मैंने बोला इसका नंबर मुझे बोलना पड़ेगा उसको 3, मैंने बोला 3 से मुझे तू यार 2 कैरेक्टर काट करके दे दे, तो मैंने इसको 2 बोला, एंटर बटन प्रेस किया, ये देखिए E और M कट के आ गया। ये तो फंक्शंस ठीक थे, आप भी इसको कर लेते, लेकिन एक फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कि सर मैंने यहाँ पर F2 का बटन दबाया, F2 आपको बताइए एडिट करने के लिए सर यूज होता है, तो मैं यहाँ गया, मैंने F2 का बटन प्रेस किया, सॉरी हाँ F2 का बटन प्रेस किया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रेमा भोपाल, चलिए भोपाल लिख दिया। अब बात यह आई कि अरे सर प्रेमा भोपाल तो आपने लिख दिया सर, वो प्रेमा भोपाल नहीं, प्रेमा इंदौर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए फंक्शन यूज होता है सब्स्टिट्यूट, तो मैंने लिखा सब्स्टिट्यूट फंक्शन लिखा। इसमें वो पूछता है भाई तुम्हारी टेक्स्ट कौन सी, तो हमने बोला ये वाली टेक्स्ट है, कौन सी टेक्स्ट तुम चेंज करना चाहते, तो हमने कहा भोपाल को चेंज करना चाहते। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भोपाल आप डबल कोट्स में लिखेंगे, मैंने बोला भोपाल, और इसको मैं किससे चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने बोला सर मैं इसको इंदौर से चेंज करना चाहता हूं, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर, देखिए ये चेंज हो गया सर। ये देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा, हाँ अब दिख रहा है, ये देखिए प्रेमा इंदौर हो चुका है। तो ये फंक्शंस के मैंने आपको कुछ शॉर्टकट कीज भी बताई, ऑल्ट इज इक्वल टू, मैंने आपको सम के लिए बताया, कंट्रोल कोलन, कंट्रोल शिफ्ट कोलन, ये भी मैंने एक बार बता दिया है आप लोगों को। एक कुछ फंक्शंस और बता देता हूँ जो फटाफट हो जाएंगे, जैसे एक फंक्शन होता है नाउ, फंक्शंस आते होंगे सर लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ, ये नाउ है,
ये अभी इस वक्त मेरे कंप्यूटर की डेट और टाइम क्या चल रहा है ये आपको बताएगा। इसके अलावा एक फंक्शन और होता है दैट इज कॉल्ड टुडे। तो ये आपको बता देगा कि आज की डेट क्या है। तो ये दो फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिए। तो ये क्या होता है कि कभी कभी हम लोग समहाउ इनको यूज करते रहते हैं, तो हम लोगों की हमको इनके बारे में मालूम रहते हैं, बहुत सारी बातें जानकारी में रहती हैं। तो ये फंक्शंस जो मैंने अपनी तरफ से आपको बताए, तो मैंने आपको इफ बताया, मैंने आपको कुछ छोटे छोटे फंक्शंस बताए। चलिए अब हम और चलते हैं इसके ऊपर। तो ये नेम्ड रेंज हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, ये सारे फंक्शंस हो गए, लेस देन ग्रेटर देन हो गया सर। हाँ, एक बात और कि हम लोग किसी भी स्ट्रिंग में मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स ही लिख सकते हैं। अब शायद ये बढ़ गए होंगे तो अलग बात है। और फिर इसके बाद कुछ फंक्शंस डेप्रिसिएशन के होते हैं, लेकिन उनके लिए तो अभी टाइम लगेगा। अब मैं कुछ यहाँ पर और ऐसे फंक्शंस के बारे में बात कर लेता हूँ जो काफी ज्यादा काम में आते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा बस मैं इन फंक्शंस के बारे में ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ एक्सेल शीट में शायद खुली हुई हैं, मैं देख लेता हूँ। नहीं है तो मैं यहाँ से खोल देता हूँ। एक दो फंक्शंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल फंक्शंस थे सर, तो मैंने लाए थे। ये है, ये फाइनेंशियल फंक्शंस हैं सर, ये बड़े काम में आते हैं। तो कुछ फंक्शंस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस तो मैं यहाँ पर ले नहीं पाऊंगा। तो कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। तो खास तौर से सर ये एक फंक्शन है जिसका नाम है सर PMT। ये फंक्शन मैं अपनी एक्सेल शीट पर आपको करके दिखाऊंगा, और फिर अगर आप चाहेंगे तो इसमें कुछ एनालिसिस भी हम लोग करके देख पाएंगे। लेकिन क्या है, मेरे को अनिल सर को भी स्क्रीन शेयर करवानी है, वो भी करेंगे। इसके बाद कुछ उनको भी वी लुकअप एच लुकअप बताना। बस मैं आखिरी ये फंक्शन PMT ले लेता हूँ। बस PMT फंक्शन के बारे में मैं आपसे बात कर लूँ। ये है हमारी शीट सर। इसके अंदर PMT जो फंक्शन है, मैं एक नई ही यहाँ पर शीट जल्दी से ऑन कर लेता हूँ। देखिए PMT फंक्शन मैं क्यों लेना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था सर। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ फंक्शंस और बता दूं। PMT भी होता है, IPMT भी होता है, PPMT भी होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पर थोड़ा सा PMT फंक्शंस के बारे में मैं बात कर लूं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो मान लीजिए मैंने एक घर खरीदा 5 लाख रुपए का। अब इतना सस्ता तो घर आता नहीं है, लेकिन सर चलिए मैंने यहाँ पर लिखा 5 लाख रुपए का घर खरीदना था, यानी 5 लाख रुपए का लोन अमाउंट है सर ये। इसमें सर मुझे मार्जिन मनी देनी पड़ी 1 लाख रुपए, और मैंने यहाँ पर शीट पे देखा भी था, बताया भी था आपको। मैं इसी के अकॉर्डिंगली कर देता हूँ। तो जो कॉस्ट ऑफ हाउस है 5 लाख रुपए, और लोन अमाउंट जो है वो 4 लाख रुपए है ना? ले लेते हैं सर अपन इसको भी। तो ये है कॉस्ट ऑफ हाउस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस्ट। ये क्या है, तो ये है मार्जिन मनी। तो लोन कितना हो जाएगा सर, तो लोन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं कि फंक्शंस लगा रहे हैं, ध्यान से रखिएगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, माइनस ये वाली वैल्यू ले ली, ये हो गया। तो ये हो गया 4 लाख। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है रेट। तो रेट मुझे बैंक जो दे रही है, मांग रही है, आजकल 9% है, आप लोगों को ज्यादा पता है, मैं 9% ले लेता हूँ यहाँ पर। 9% ईयरली है सर ये। तो मंथली कितना हो जाएगा, मंथली हो जाएगा इज इक्वल टू सिंबल ये वैल्यू डिवाइडेड बाई 12। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर ये परसेंटेज सिलेक्ट नहीं है तो इधर से परसेंटेज पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना, कोई बात नहीं। ये हो गया मंथली। अच्छा, इसके बाद होता है इसमें सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए ही मैं इसको ले रहा हूं, और वो है, देखिए इसमें मैं दिखा दूं कि इसमें है ना टोटल मंथ जो है वो आपको लिखना पड़ता है, और ईयर्स ऑफ लोन 5 साल। अब इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन अलाउड नहीं रहता सर, मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। डायरेक्ट कैलकुलेशन सर अलाउड नहीं रहता है, मतलब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो ईयर्स ऑफ लोन जो है
मैंने यहाँ लिख दिया टाइम पीरियड, मान लो मैंने लिख दिया 5, ये तो ठीक है। अब इसका n पर मतलब टोटल नंबर ऑफ पर कितने हैं, तो मैंने लिखा सर टोटल नंबर ऑफ पर जो है वो मेरे यहाँ पर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 60 नहीं लिखना है सर, नहीं तो वो पीएमटी नहीं चलता, बहुत दिक्कत देता है। फिर हमने बहुत स्टूडेंट्स के साथ उसको स्ट्रगल किया। यहाँ पर सर 12 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली वैल्यू लिखना है सर, ये वाली, तो हमारा आंसर आ गया 60, है ना। या आप यहाँ पे डायरेक्ट 60 लिखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आगे व्हाट इफ वगैरह में परेशानी हो जाती है फिर, है ना। तो रहने देते हैं अभी उसको। अब हम यहाँ पर लिखते हैं पीएमटी, है ना। ये सारी तैयारियां हमने पीएमटी के लिए कर ली हैं, तो पीएमटी फंक्शन में लगाता हूँ। पीएमटी हमको ये बताएगा कि टोटल 5 साल में हर मंथ की ईएमआई कितनी आएगी। पीएमटी का कई बार मुझसे बच्चे फुल फॉर्म पूछते हैं, तो उसका मतलब होता है पेमेंट। तो ईएमआई फंक्शन का नाम नहीं है, पेमेंट पीएमटी है। तो मैंने लिखा पीएमटी फंक्शन लिखा। इसके बाद देखिए मैंने पैरेंथेसिस जैसी ऑन की, तो ये पूछता रेट। सबसे पहले तो वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ये रेट कितना है आपका। तो रेट सर पर मंथ वाला सेट करना है ना, तो ये दे दीजिएगा पर मंथ वाला। अब एन पर सर कितने हैं, तो एन पर सर हमारे 60 हैं, वो मैंने दे दिया। और फिर वो पूछता है पीवी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी, तो सर प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख रुपए। फ्यूचर वैल्यू सर हमारे पास है नहीं अभी, ये फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए भी यूज होता है, तो फ्यूचर वैल्यू तो है नहीं। अब फ्यूचर वैल्यू नहीं है तो सर यहाँ पर अभी 0 दे दीजिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पैरामीटर खाली मत छोड़िएगा। और टाइप 0 या 1 में से दे सकते हैं। तो अगर मंथ के शुरू में दे रहे हैं तो 0, और मंथ के एंड में दे रहे हैं तो 1, ऐसा रहता है इसमें। इसको मैंने 0 दे दिया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। ये देखिए माइनस का फिगर आता है। आप पूछेंगे सर माइनस का फिगर क्यों, तो एक्सेल में जब भी मैं पैसे दूंगा तो माइनस, और जब भी मुझे पैसे मिलेंगे तो प्लस। ये रूल है। अगर लोन भी मिल रहा है तो भी उसकी एंट्री प्लस में होती है, और अगर मैं पैसे दे रहा हूं, अब ये तो ईएमआई में सर दे रहा हूं ना, तो इसकी जो एंट्री है वो माइनस में आएगी। बस एक 2 मिनट में मैं 2 से 5 मिनट और समय सर आप लोगों का लूंगा। इसमें मैं एक छोटा सा एनालिसिस और करके दिखाना चाह रहा था, और वो एनालिसिस सर डेटा के अंदर होता है, उसको कहते हैं व्हाट इफ, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पीएमटी फंक्शन मैंने बता दिया है। मैं एक छोटा सा आपको एनालिसिस करके दिखाना चाहता हूं सर। अगर मान लीजिए व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर हम जाएं, तो ये डेटा के अंदर मिलता है। अगर मैंने घर में आकर के अपने घर वालों से बात की और मैंने कहा भाई बैंक ने 8,303 रुपए 34 पैसा कहा है कि हर मंथ देना है, तो घर वालों ने बजट निकाला और बताया, बोले इतना पैसा तो आप नहीं दे सकते। तो यार इतना पैसा नहीं दे सकते, तो उन्होंने बोले तुम तो 8,000 ही दे सकते हो, 8,303 नहीं दे सकते सर। तो मैंने तुरंत बैंक को फोन किया, भाई वो मेरा लोन अभी मत आगे बढ़ाओ, कागजात मत बढ़ाओ, क्योंकि मेरा इतना बजट ही नहीं है सर। तो बैंक वालों ने कहा अच्छा ठीक है, आपका बजट नहीं है तो आपका कितना बजट है। मैंने कहा भाई मेरा 8,000 बजट है। बोले ठीक है सर, हम 8,000 आप कर लीजिए। बोले 8,000 में कैसे हो जाएगा, तो बोले बस कुछ नहीं, आपका जो रीपेमेंट आप कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अब चूंकि मेरे को घर तो लेना है और मैं उस बात के लिए एग्री हो जाता हूँ कि ठीक है तुम टाइम बढ़ा दो। तो सर ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग है, इसका बहुत यूज होता है सर। तो अब मैं ये रिवर्स इंजीनियरिंग आपको करके दिखाता हूं, देखिए कैसे होती है। इसके लिए आप सर व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, उसमें एक फंक्शन एक ऑप्शन है जिसका नाम है गोल सीक। इसके अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं, और वो है पहला ऑप्शन, वो पूछता है सेट सेल, आपको कौन सी सेल को सेट करना है। तो सर हमको ये वाली सेल ही सेट करनी है, तो ये वाली सेल आप सेट कर दीजिए, क्योंकि आप इस सी से तो नाखुश है ना। फिर आपको यहाँ पर क्या वैल्यू चाहिए, तो सर यहाँ पर बहुत बार बच्चों ने गलती की है, मुझे बहुत बार इसके लिए बच्चों के पास जाकर उनकी उन गलतियों को ठीक करना पड़ता है। पर यहाँ थोड़ा सा बता दूं, यहाँ अपने को इसे 8,000 लिखना है, लेकिन सर माइनस का 8,000 लिखना है, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कि जब भी पैसा हम देते हैं तो माइनस का। मैंने सर यहाँ पर लिखना है माइनस 8,000। अब इसमें से हम कौन सी वैल्यू चेंज कर सकते हैं सर, लोन अमाउंट हम चेंज कर सकते नहीं है, मार्जिन मनी हम चेंज कर सकते नहीं है, हम इंटरेस्ट भी चेंज नहीं कर सकते सर। सिर्फ हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है सर टाइम। तो आप ईयरली वाला टाइम चेंज कर लीजिएगा, ईयरली वाले को क्लिक करिएगा जिससे डिपेंडेंट एन पर है, और इसके बाद ओके का बटन प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है सर। देखिए ये मैंने प्रेस किया, ये देखिए इसने टाइम बदल दिया सर।
और उसने मुझे करके दिखा दिया कि यस आप जो है वो 62 मतलब 60 की जगह आप 62 मंथ तक पैसे दीजिए, हम आपकी बात को एग्री करते हैं और ये चेंजेस यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। और वो हो भी गए थे, मैंने वहाँ शायद किसी गलत बटन को क्लिक कर दिया। एक बार मैं फिर से इसको करके दिखा देता हूँ, पता नहीं वो एक्सेप्ट हुआ नहीं पर हो गया था। एक बार फिर मैं व्हाट इफ एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। हम जाते हैं गोल सीक के ऊपर, गोल सीक के ऊपर जाने सेट सेल, मेरे को ये वाली सेट सेल, ये वाली सेल को सेट करना है, मैंने इसको सेट कर दिया। टू वैल्यू, तो यहाँ फिर याद रखिएगा हमको -8000 देना है और बाय चेंजिंग द सेल ये वाली सेल सेलेक्ट करिएगा और ओके का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ये हो गया सर, और इसको ओके का बटन मैंने प्रेस कर दिया। अब बिल्कुल फिक्स हो गया है। उस वक्त शायद मेरे हाथ से कोई गलत बटन दब गया था। तो बैंक रेडी है, कह रही है कि आप ले लो लोन, 8000 आपकी किस्त मान ली, आप बस 2 महीने किस्त और पे कर देना। तो ये था मेरा सेशन सर। अब 5:10 हो गए हैं। तो सर अनिल सर 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो। हाँ सर, अब आप श्योर। हाँ। सो फ्रेंड्स, कैन यू हियर मी? आनंद, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है। ओके। मेरी स्क्रीन दिखने लगी? जी सर, आपकी स्क्रीन जी दिख रही है सर। दिख रही है सर, दिख रही है। ठीक है, चलिए। ओके। So friends, now we are coming to the first portion. We are interested to understand the function of a dollar in cells. I say dollar, actually it is इसको एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू करके बोलते हैं. So that we are going to discuss. So suppose ये मेरा पर्टिकुलर एक कैलकुलेशन है जिसमें यहाँ पे मैंने टोटल निकालना है. तो यू ऑल आर अवेयर कि मैं इक्वल टू दबाऊंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टोटल अपने को मिल जाएगा. और इसके बाद यहाँ पे इसको प्रेस करके पुल डाउन कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है. बट ये जो सेल आता है, दिस इज नोन एज एक्चुअली रिलेटिव वैल्यूज. C7 और D7 इज द रिलेटिव वैल्यू. सो नाउ इफ आई गो डाउन, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली जब मैंने उसको पुल डाउन किया है तो ऑटोमेटिकली ये किस में कन्वर्ट हो गया? C8 और D8 में. ये एक्सेल का बहुत पावरफुल टूल है जिसको अपन यूज करते हैं. नाउ उसके और नीचे जाएंगे तो ये C7 और C9 और D9 में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये एक्सेल का बहुत पावरफुल टूल है जिसको आप सब लोग यूज करते हो. बट कई बार रिक्वायरमेंट ये आती है कि सपोज मेरे को ये तो हो गया, अब मेरे को एक फिक्स्ड वैल्यू है, मेरे को डिस्काउंट देना है सपोज 10% इन सब वैल्यू के ऊपर. अब मैं उस डिस्काउंट के लिए या तो यहाँ पर सबके आगे 10-10-10 लिखूं और फिर यहाँ फॉर्मूला लगाऊं और उसके बाद कैलकुलेट करूं. बट अगर मेरे पास एक ही जगह डिस्काउंट लिखा हुआ है और उसके बाद उसको यहाँ पे डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है? सो फॉर दैट आई हैव टू कन्वर्ट फॉर्मूला इनटू द एब्सोल्यूट फॉर्मूला. तो वर्किंग इज वेरी सिंपल. मैंने इक्वल टू किया, इस टोटल को 90% से मल्टीप्लाई कर दिया. 10% डिस्काउंट देना था बट उसको मैंने 90% से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई. अब अगर मैं इसको फिल डाउन करूंगा तो आप ये देखिए सब में डैश डैश आ जाता है. ठीक है, उसका रीजन क्या है? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है
ये इसके नीचे यहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं लिखा है। जब मैं यहाँ पे जाके फॉर्मूला देखूंगा तो इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स टू द E8 टू H4। H4 में तो कुछ नहीं लिखा है। सो व्हाट आई हैव टू डू हियर, आई हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू द डॉलर। तो जो H3 की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे जाके इसे डॉलर में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको फिल डाउन करूंगा। सो ऑटोमेटिकली उसके बाद ये प्रॉपर वैल्यू देगा। तो इसलिए डॉलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसको थोड़ा सा और अभी डेप्थ में भी लूंगा। नाउ दिस वे यू कैन एबल टू कैलकुलेट द एनीथिंग विच इज ए स्पेसिफिक नंबर। यहाँ पे एक परसेंटेज डिस्काउंट है जिसको मेरे को सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैंने अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख दिया डॉलर लगा के, तो उसके बाद वो जब मैं फिल डाउन करता हूं तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो हमेशा वही रहेगी। दैट इज $H एंड $3। अगर आप किसी भी सेल में जाएंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी, दैट इज $H एंड $3। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फंक्शनलिटी इन द एक्सेल। अब इसको मैं जरूरी नहीं है कि अगर आपको डॉलर, इसके लिए एक शॉर्टकट भी दिया गया है विच यू कैन अप्लाई, दैट इज F4। अगर मैं इसको F4 प्रेस करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर देता है। अगेन इसमें यू हैव ए ऑप्शन कि सिर्फ H में भी आप लगा सकते हो और आप सिर्फ 3 में भी लगा सकते हो, दोनों में से किसी में भी लगा सकते हो। दोबारा F4 दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ 3 में लगेगा और H में नहीं लगेगा। फिर से आप F4 दबाएंगे तो H पे लगेगा, और उसको हटाना है तो फिर से आप F4 दबा देंगे तो ये हो जाएगा। सो ये शॉर्टकट की याद रखना कोई जरूरी नहीं है, बट यू मस्ट नो कि डॉलर की इंपॉर्टेंस क्या है और डॉलर क्यों लगता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, मैं अगर H में डॉलर लगाऊंगा तो क्या होगा। तो मैंने अभी सिर्फ H में डॉलर लगाया, और उसके बाद जब मैं इसको फिल डाउन करूंगा तो वैल्यूज नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली H विल रिमेन द सेम, बट ये न्यूमेरिक वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स मेरे को H के आगे डॉलर नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, बट मेरे को 4 के आगे डॉलर इज इंपॉर्टेंट। सॉरी, so again I can go and fill down. So this way it is going to work. Any questions in this? If you have any questions, you can ask in the chat box. So now we are moving to the next thing. We are coming to the next functionality, that is the VLOOKUP. So I'm going to take the 2 cases for the VLOOKUP. This is the item and the unit cost. That is pen. This is a particular shop which is selling some stationery item, which is pen, binders, pencil, and so on. And the unit cost is like this. So I'm interested to that this particular location automatically the value should come. Actually VLOOKUP का एडवांटेज क्या है, VLOOKUP या HLOOKUP का, कि जब भी आपको कोई भी बना बनाया टेबल पढ़ना है तो सॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली उस टेबल से आपके हिसाब की वैल्यू ढूंढ के आपको लाके दे देता है। सो दैट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ द VLOOKUP और HLOOKUP. सो लाइफ में जब भी आपको कोई टेबल पढ़ना है तो टेबल पढ़ने के लिए आपको टेबल आपके पास होनी चाहिए, और आप VLOOKUP या HLOOKUP लगाएंगे तो उससे वो टेबल को आप पढ़ पाएंगे. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द VLOOKUP एंड HLOOKUP. सो यहां पर मेरे को जो पढ़ना है दैट इज बाइंडर, इस टेबल में से पढ़ना है, और इसमें रो 1 रहता है, देन रो 2 रहता है. सो उसके बाद मेरे को बताना पड़ेगा किस रो से पढ़ना है. So just see how I am going to apply the VLOOKUP.
VLOOKUP, then I have to apply a bracket. Then it is asking VLOOKUP value. So this is the VLOOKUP value which I am going to select. After that, I am going to place the comma. Then table, where is my table? So from this table, I have to read that particular value. Again, I have to apply a comma. Then I have to read first line or second line. So I'm interested to read the second row of this. And after that, I can press bracket close. So I can able to get the value. That means the cost of the binder is 19.99. Same way, if I convert into the pen, so automatically the value will change. And I think some mistake is there. So it has come in this particular way. Any questions? Now we are coming to the second point, which is very important position as far as the VLOOKUP is concerned. Actually, in VLOOKUP, in the previous example, we are going for the exact value. If I am going to make any mistake in typing or do anything wrong, automatically this is not going to appear. So what I have to do, I have to always be going for the very right value. And in many of the cases, suppose in this particular example, I have this particular date, and against that date, there is a particular rate of a particular item is there. Or you can have this particular date, and against that date, I have a excise value for a particular item. So anything can be happen. So there is a date. This particular format is MMDDYY. Then I have a particular rate, on what particular rate it is being sold. So this is being or rate of that particular pen. So on 1/1/12 it is this. In the February, 1st of February it is 12. 15th of February it is increased to 12.5, and on the 13th it is increased to 13. Now I am interested to calculate the value which will be there on the 2/16, February 16th, what will be the value. So it automatically goes to the higher value and it will calculate. That is the advantage of the VLOOKUP. So for that, you have a one optional value at the end. If you see, there is a one optional value in the end, that is range lookup. So if you make this particular range lookup as 1 or true, so it will going to work. So I'm just going to change this particular date. Suppose I have purchased any item on particular, say, January 5th, 2012. So automatically the value will come as a 12. Again, if I am going to purchase anything on February 5th, 2012, again the value will remain same. But again, if I am going to change this particular value to 16, automatically the value will come to the next value, which is next higher value, which is 12.5. Again, if I'm going to change this particular month as 3, so automatically the value is going to convert to the 13. So this way, in the previous VLOOKUP, what is the case? It matches the exact value. But in this particular case, it doesn't matches the exact value. It
if the value comes in between the two value, it will automatically go to the next higher value, next value, and it is going to consider that particular value. So whenever you have any particular problem where you have to calculate the value according to this, then you can able to calculate this value. Any questions in the VLOOKUP? Any questions? So now we are coming to the last portion of this particular session. That is how we are going to work with the pivot tables. So in that particular case of the pivot tables, this is my table on which I am interested to apply a pivot table. The biggest particular point in the pivot table is, everyone is aware that pivot table is very useful for making the summary reports. But exactly what is the power, when to use this, that is very important. It can be used just to have the two, just to, even if you want to summarize subtotals, that is also possible with the pivot tables. If you want to summarize the values row wise, column wise, that is also possible. So this way you can able to work it out. So I'm just taking this particular example. So this is my table, and how I am going here, just see, I have to go to the insert, and insert at the corner you have a pivot table, and I have to select the range tab. So I have to select this range tab. So I can select this range tab. Then from this range tab, what I can do, then it is you want to in a new worksheet or existing worksheet. So I can select, say I am interested in the existing worksheet, and this is the location where I want that particular pivot report. So I have selected this particular existing worksheet. Then I can say okay. So this pivot report will come to this particular place, right? Now you have to be very careful on this particular thing. So this location you will get the pivot table, and these are all the names of the fields which will appear here. So here you have a report filter. You have a report filter here. Then you have a column label. Then you have a row label. Then you have a values. So these are all the things which are there. So you have to be focused on this, that how you are going to work on this. So what is my column label? So you have to define your column label. So say for example, what I am interested, I have to define now, or I have to think about that. So basically what I have to do, I have to just say that I want to calculate that in the region East, how many pencils are being sold. So I can take one column as a region. So column side, I will take the region. So I have moved this to the region, to the, then you have an item. So item I have moved to the row side, and filter I am not using, and total cost, or I can convert unit cost at this particular place. So first I am interested to know the total amount. So I am just moving to this. So these are basically the 5 products which company makes, and East, West, Center, India. This is the total sale which is available with the help of this, right?
So this way you can able to work out that what is the total set with the help of the pivot table. If you have any question, you can ask. So next I'm interested to, instead of a total sum, I'm not interested to total sum. So I can place it back here, and I'm interested to the total unit should be displayed here. So I can just place the total unit. So you can see how many number of pencil is sold in the central India, how many pencils are sold in the east, how many pencils are sold in the west, and this is the total. So this way you can able to work it out. Many times you have a particular doubt that whether this particular thing, how the computer has calculated this particular value of the pencil, or how this particular pencil has calculated in the central region. So what you can do, you can just give double click. Automatically the full summary of that calculation will be displayed on the new sheet. A new sheet will be displaying the total transaction, what is being there. So automatically, if you want to have any particular information, you can see on this particular new sheet. Right? So anything, if you want to have any detail, you just go and double click on that. So you can able to get the total new sheets. So for example, 88, if I wanted to know, so you will get how the 88 has come. So this is the value, unit 32 plus 56. So this is the way how we have got to the 88. Any questions on this? Any questions on the pivot table? Sir, we will take questions in the end once your deliberation is complete at that particular point of time, because अभी मैंने सबको mute करके रखा है यहाँ से. अच्छा, है ना? Sure, sure, sure. ठीक है. So you please continue. Okay. What I will request you, just take the question answer session right now. Hello. Hello. जी सर. I will request you to take the question answer session right now because it's nearly completed. Okay. मेंबर्स, अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप रेज हैंड्स कर सकते हैं. So we will unmute you and you can ask directly questions to the faculty. Or you can send us the chat message through chat box. We'll ask the question to the faculty. अनिल सर, अभी तक के किसी का सच रेज ऑफ हैंड्स नहीं हुआ है. Okay. तो आ रहे हैं सर. सर, हाउ टू यूज स्लाइसर इन पाइवट टेबल? Slicer. जी. I have to see slicer होता क्या है पहले. आपको पता हो तो बताओ, मैं फिर आंसर दे सकता हूँ. What is slicer? मैंने बहुत पहले यूज. नहीं, या आप रिक्वायरमेंट बताओ तो we will think of that requirement accordingly.
मैं जिसने पूछा है उनसे एनीवे ठीक है। अच्छा ये अभी चैट बॉक्स में पूछा है। हाँ ओके ठीक है। एनीवे राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर दिस। ठीक है we will Sir, get back. actually, this is a function which is available from 2013 onwards, Excel 2013. Okay. So at this point of time, आपके पास वर्जन शायद 2007 आप यूज कर रहे हैं, हाँ 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 इसीलिए तो दिक्कत उस होगी। इसमें ये फंक्शन नहीं है अवेलेबल। Anyway, we will come back to you with the slicer. If you have any even question with the Anand sir, he's also come, so you can ask a question from him also. Or that portion he has covered. Ganeshan sir has raised hand. Someone see देखिए जरा. किसने करा? राजमणि गणेशन जी ने. जी मैं म्यूट करता हूँ। गणेशन सर आप Yes, sir. जी Sir, tell me about control bracket function that is very much useful for the chartered accountants while making the balance sheet. Control Control bracket. bracket. Go to the formula in some other sheet, link sheet. Anand sir. Function is very useful for us while making the balance sheet. Okay. Control function. Control bracket, left side bracket. That goes back, right side gives you the connection also when you go to that sheet. Even I learned this function only while doing some balance sheet with some other IT companies. Name of the function is control. Control and bracket. Control Suppose and we want to see the schedule figure from where it has come in the link sheet. We will go to the particular link sheet. Oh. Anil sir, I'll just like to interrupt. मैं बताना चाहूँगा. We see the formula and go to the Now I understand. सर कोई भी formula open कर लीजिए. directly take it. कोई भी formula पे click कर लीजिए जो भी आप. Yes. Now I understand. उसके control bracket का This is very useful for us. वो linking दिखा देता है. Agreed. Yes. Suppose this is the value 4. There is another value 8. I'm interested to add this plus this. So cell reference, okay. where it is, which menu it is? सर आप कंट्रोल प्लस जो कर्ली ब्रैकेट्स होता है ना उसको प्रेस करिए तो बेसिकली दिस विल लीड टू द सेल रेफरेंस के ये फॉर्मूला कहाँ किस शीट्स में जैसे एंटीसीडेंट्स और प्रेसिडेंट्स बता देता है वो. कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से एंटीसीडेंट बताता है, कंट्रोल राइट ब्रैकेट से प्रेसिडेंट बता देता है वो. लेट्स से आप 12 के ऊपर कंट्रोल के साथ लेफ्ट नहीं उसको लिखा रहने दीजिए. फॉर्मूला छोड़ दिया. Escape, control, press control and press the left square bracket. Okay, square bracket you have to Right. When you press control with the left square bracket, so it will take you to all the cells which are referenced in that particular formula. Right. And if you let's click on 4, and then if we press control and right bracket, so it will take us to the referred formula back. Okay. So that is the use. So in many times when we are preparing balance sheets, there are certain groupings that are done, and a final figure is appearing in a balance sheet, and we want to know what are the total figures that have been included. Let's say we are preparing a balance sheet from a trial balance.
So it might happen that some grouping has been done on the formula basis itself and a list is not prepared of that. Or it is linked to a schedule from where the figure is coming. So we can use just, click on the figure, use the control left bracket to go to the grouping figure. So it will just take us to the, link from where the formula is coming, the actual cells which are being referenced. That's okay. Actually, Or sir, I'm not sorry only to interrupt. cells, it will be taken to the sheets. Basically, if there are no, it will take you, if it is on the same sheet, then it will take you to the cells, and if it is on a different sheet, it will Yes. take you to the sheet and to the cell. yes. Okay. So means we have a very good graphical representation for the same in the Excel. I'm just not remembering where it is. The same thing, the arrow will come on the screen and you can able to get the same information with the help of arrow also. Trace the precedence. Yes. Okay. So if I select this and say trace the precedence, so I will get the information that from which sheet it is coming, right? Yes. So this is 4 and 8. And it shows that from the any other sheet also it is added. So that's why this particular image also has come, right? Yes. So this way you can use this particular keys directly because it gives a better picture view for the same. Yes, definitely. This will give you all the things. Rajmani ji is again raising his hand. No. I know it. Any other questions of the members? अगर एक्सेल शीट में लगे हुए फार्मूले देखना है तो कंट्रोल के साथ टिल्ड का बटन दबा करके देख सकते हैं. जैसे मल्टीपल फार्मूलेज होते हैं ना, तो कंट्रोल के साथ टिल्ड का बटन ऊपर का प्रेस करके आप देख सकते हैं कौन कौन से फार्मूलेज लगे हुए हैं, क्योंकि मल्टीपल फार्मूलेज लगते हैं तो फिर F2 से नहीं काम चलता है. ओके. हाँ, कोई अगर शीट है तो उस पे आप मल्टीपल फार्मूलेज लगाइए. आप जैसे आपकी ये 3-4 शीट्स हैं, अगर उसमें मल्टीपल फार्मूलेज लगाए हैं देख लीजिए उस पे. हाँ, ये देखिए. हाँ, ये देखिए. So this way you can get this information also. हाँ, अगर आप कंट्रोल के साथ फिर से टिल्ड का ही बटन प्रेस कर देंगे फिर से तो ये इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाएगी सर. हाँ, तो अगर मल्टीपल फार्मूलेज लगे हैं तो ये अपन कर सकते हैं. और ये ऑप्शन ऐसा का ऐसा ही अपने को फार्मूलेज में मिलता है. देखिए यहाँ पर ऊपर शो फार्मूला, ये फार्मूला जो टैब है उसके अंदर खुल जाता है शो फार्मूला. उसमें देखिए शो फार्मूला है ऊपर, राइट. वहीं पे रिमूव एरोज के ऊपर आगे देखिए शो फार्मूलाज है. ये यहाँ सर ये देखिए ये शो फार्मूलाज. Any other questions of the members? Pradeep ji, I don't think so. We have any more queries from the members. Pradeep ji? Yes. Yes, Samak ji. I don't have any queries and I don't have any queries in my chat box and I don't see any raise of hands from members. So can we conclude today's session? I think yes, we should, because there are no queries and there are no raise of hands. Thank you, Anil sir. Thank you, Anand sir. Thank you, sir. Thank you, all the participants. I think it was a wonderful interactive sessions, and
I'm very thankful on behalf of Bhopal branch of CIRC that members, Dr. Anand Paradkar and Shri Anil Manu sir, both have given good Excel basic knowledge to the members present, and it would be beneficial for members. I would also request members to be present at the same time tomorrow, wherein we would be using Excel as an audit tool, and the session would be taken by CS Saurav Srivastav. I would also thank to CS Samang Mohave Treja for taking up this virtual seminar, and CS Saurav Srivastav sir, who was guiding the entire program event. Thank you everyone. Samangji, I think you can end the meeting. Thank you, Pradeep ji. Thank you, everybody. I'm ending meeting for all.